क्योंकि ईरान और इंडिया का रिलेशन न्यूट्रल है, क्योंकि इंडिया ने ना यूएस की साइड ली ना ईरान की, तो ईरान इज ओके विद दैट, दे आर ओके, बोथ द कंट्रीज आर ओके विद अ न्यूट्रल स्टांस। गवर्नमेंट ने साइलेंट डिप्लोमेसी रखी, बहुत ज़्यादा ना उसको इजराइल को क्रिटिसाइज़ किया, ना ईरान को क्रिटिसाइज़ किया, और बड़े भाई को तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ जी। इतना मुश्किल था ट्रेड करना, बिकॉज तब तो इंटरनेट तो था नहीं हमारे पास, राइट? नहीं, वो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उसको एक एक्सक्यूज ही समझूंगा, क्योंकि दुनिया के पास ही वो टेक्नोलॉजी थी। बट अभी रिसेंटली इंडिया ने ईयू के साथ 27 जनवरी को मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साइन करा। गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है उस टाइम की गवर्नमेंट की, उससे अलग नहीं डिसाइड कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ दे आर द मीन्स ऑफ गवर्नमेंट, दे आर द आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैं जब 1970s में अब्रॉड जाता था तो टेलेक्स से काम करता था, टेलेक्स से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करता था, टेलेक्स से अपने कम्युनिकेशन करता था। Can you even visualize that? I was actually looking at both of you. What is telex? जिस टेक्नोलॉजी में हम रह रहे थे, जिस टेक्नोलॉजी पूल में हम रह रहे थे, और कंट्री भी रह रही थी ना। मलेशिया के पास तो मोबाइल फोन थोड़ी था, इंडोनेशिया के पास इंटरनेट थोड़ी था। So some people say that India is the next great world's superpower in trading, whereas some people say it's a far-fetched dream almost for about 20 years. Which team are you on? Hi guys, I'm Shikha. Welcome to our podcast, What the Gap. Hi, this is Mona, and welcome again. Perfect. Let's understand it with our guest today. So today, joining us is Mr. Sanjeev Kumar Gupta. He has multiple feathers in his hat. Just to start, he is a qualified chartered accountant, a company secretary and an MBA from the UK in 1987. Post which he had his textile business in 1987 with some trading offices in Thailand and Indonesia. And after that, in 2005, he came to India, has his own hotel in Rajasthan, as well as done international business in textiles and pulses across the world. And the fun fact about him is that he has traveled across 150 countries. Yes, guys, he has actually kept a count, and he has almost traded with most of them. So let's understand with him, ये trade सिर्फ import export होता है या उससे कुछ ज़्यादा? Welcome, sir. Welcome to our podcast. Thank you for having me and for lovely introduction about me. I hope my wife listens to this. Of course. Yeah, we'll the whole make sure. world listens to it, basically. Yeah. I'm so glad we are here. Yeah. Now, Shika, when you started and saying that there are two views and two schools of opinion, Yeah. and I will say, to make things more complicated, that both of them are true. Oh. But let us first see where we stand now. As we talk today, where do we stand now? Taking some statistics, which is I promise you this I am doing for the only time in this podcast. We are roughly 17.8% of world population. We all know India is the most populous Of country course. in the world. We are 1.476 million people. When I left home today morning, when I go home, will be a little more too. And now that is very nice, that 17%, 18% of the world population, which is almost close to 19% of the world every fifth human being is Indian, Yeah. right? Now, but then we started looking at the other aspect of it. Correct. In terms of global trade, like what is our percentage, what is India's percentage of global trade, we are merely 2.5 to 3%. Of course, it has improved I won't say vastly, but it has improved a bit in last 20 years. Okay. So that is a good sign. And if we compare out of this, if we break up this 2.5% into merchandise trades and services trade, in merchandise trades, cement, steel, automobiles, electronics, textiles, shoes, whatever you see, anything which is tangible, Yeah. Right. we are only 2.2% of the world trade. Oh my God. And of course, in services, we are 4.5%, which is still very low, considering that our main resource is human resources. Absolutely. So services and human resources are directly connected. So that means a lot of scope for increase. Yes. Now let me also give you some good news. I Yeah. don't want to come with all the soap stories today. No, no. In IT, we are almost 20% of world Oh, IT output. that's That is nice. very nice, and that's a very
it's nice not in terms of the sheer numbers. It is nice because it also shows we are at a very advanced stage of learning, and this we have achieved without adequate infrastructure. Yeah. Because IT is all in the minds. We don't need ports, we don't need railways, we don't need airport, we don't need highways and all That's the a very physical valid infrastructure. point you have there. Yes, because we are a discrepant country in infrastructure, physical infrastructure. Correct. So IT we have reasons to be proud of. In manufacturing, the story is very sobering. We are only 3% of the world producer of all manufactured goods, which I said. Trading is about 2%, 2.2%, and actual manufacturing, that is what we 3%. consume and what we trade with the world, is only 3%. Okay. Similarly, accordingly, as expected, our share of the world GDP is only 3.5%. And to rub some salt into this, let me also tell you, when Mughals were running India, we were almost 25% of the world economy. So, our trajectory has been actually downward. Like, we cannot claim to have gained anything from the industrialized world. In fact, we have been squeezed out of the world economy by industrialization. Number of factors for that. Some internal, some external. But it is where we are today. तो तभी तो And पहले हमें वो सोने की चिड़िया तो पहले कहा सोने की चिड़िया बिल्कुल ठीक कहा जाता था आपको, और आपकी सोने की चिड़िया ही आपको बर्बादी का भी कभी कारण बन गई है उसके लिए. हाँ. बट वो मैं शशि थरूर के लिए छोड़ता हूँ वो सब्जेक्ट. मैं अपने आज के टॉपिक पे आता हूँ. एंड अकॉर्डिंगली, जस्ट टू वाइंड इट अप, we are only merely 4% of global reserves. I mean, currency reserves. So, we are, as we were talking, we are punching below our weight. We are not at our weight. We are far from our own weight at which we can punch. Right. Now that brings me to your opening remarks, that we can view it in two ways. A, we can keep on lamenting and keep on sobbing that we miss the bus, we are far behind other countries. The big guys, China, is doing so better than us. Well, I have been to China. I have been trading with China for 30 years. So, I am a witness to it, and no one can deny. I am also cannot deny that this is a reality of life. तो शिखा, मगर सुन, आजकल ये जो वर्ड्स हैं, जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड डेफिसिट, do you have some clarity on that? Actually, I do have an economic sense because I studied in college, but let's make it layman language. Let's understand, the international trade in a very layman language. Guys, so disclaimer, we will break down each and every concept in a very layman language, जिससे एक housewife से लेके एक teenage बच्चा या एक बूढ़ा से लेके एक आंटी जो शायद अपना स्मॉल बिजनेस चलाती हैं घर से, हर एक को समझ आए. दैट इज आवर पर्पस. कभी किट्टी में कोई बात करे तो ऐसा हो कि आपको समझ में आ जाए वो क्या बोल रहे हैं. Exactly. So we'll start with our first question. So India was always seen as a cheap labor economy pehle, right? But the times are changing now. I mean, we have that advantage in terms of IT, in terms of brain, in terms of creative sense. So for people जिनको आज भी लगता है कि, and just considering that India also is the world's kind of biggest, exporter of refined petroleum, generic pharmaceuticals, like such big streams we are opening up. And some people still feel that international trade का मतलब है import export कर देना, right? So what do you think is different? Like, how do you want to tell them कि जो change आया है from 20 years back when you were dealing with the world and now when you're dealing with the world? Yeah, very good question, and you are completely on spot. And I will try to speak more in Hindi from now onward. Sorry for my wrong choice of the language. No worries. Now you see, क्या हो रहा है कि इंडिया का पोस्ट आज़ादी सारा अटैम्प्ट था सेल्फ सफिशिएंसी में. वेरी लॉडेबल, वेरी नोबल, बहुत अच्छा गोल था वो. लेकिन उस गोल में हमने ये मिस कर दिया कि हमने इनवर्ड इकोनॉमी हो गए, हम अपनी तरफ अंदर इकोनॉमी हो गए, अपने इंटरनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहे हम, और अपने इंटरनल मैन पावर एंड रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंस रहे. हमने दुनिया से सीखा नहीं कुछ, या सीखा भी तो सिर्फ उतना सीखा जो हमारे को अपनी देश को चलाने के लिए चाहिए था. हमने उनको कभी मार्केट नहीं समझा, हमने उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर समझा, हमने उनको अपना गुरु समझा, और हमने उनको गुरु का दर्जा देते हुए कभी ये नहीं किया कि हम गुरु को भी कुछ के साथ व्यापार कर सकते हैं, कुछ ट्रेड कर सकते हैं. सो मच सो ट्रेड वाज
ट्रेड वाज एन अगली वर्ड। अब मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कहता हूँ, क्योंकि मैं जब 1985 में सीए बना, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी, सारी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, हर चीज़ का सिर्फ गोल ये था कि इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिटेन करो, अर्न ना करो, रिटेन करो। हम बड़े डिफेंसिव अप्रोच में थे कि हमारा पैसा कहीं बाहर ना जाए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से पैसा स्विट्जरलैंड ना भेज दे, कोई इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ से हवाला से पैसा बाहर ना चला जाए। तो सारा जो इकोसिस्टम था, इकोनॉमिक्स ढांचा था जो, वो इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था कि देश की रिसोर्सेज, देश का पैसा देश के अंदर ही रिटेन करके रखो। गवर्नमेंट का कहीं भी ये तवज्जो नहीं थी, कहीं पर भी ये ध्यान नहीं था कि इस पैसे को हम बाहर से कैसे लाएं, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। सच्चाई ये थी कि गवर्नमेंट को नहीं लगता था कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया में जाके माल बेच सकता है, उस पैसे से फॉरेन एक्सचेंज ला सकता है और उस पैसे से हम आगे अपनी इकोनॉमी को, अपने मार्केट को सर्व कर सकते हैं। इसका एक मैं दूसरा छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने अपनी इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चर सेक्टर को दो हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा वो था कि जो हमको अपने लिए बनाना है, और एक हिस्सा वो है कि जो एक्सपोर्ट करना है। और गवर्नमेंट की स्टेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ये स्टेटेड पॉलिसी थी कि जो बाहर के लिए प्रोड्यूस करना है उसका स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए। एक ये गवर्नमेंट को रियलाइजेशन थी कि जो इंडिया की करंट क्वालिटी है वो विल नॉट कट, इट विल नॉट बी सेलेबल इन इंडिया। तो हमने इंडस्ट्री को दो यार्ड स्टिक्स सॉर्ट ऑफ ले डाउन कर दिए कि एक अपने जो डोमेस्टिक को देना है, जो आपने को दिल्ली को, बम्बई को, कलकत्ता वाले कंज्यूमर को देना है, उसमें सब चलेगा, उसमें कुछ भी चलेगा। आप डाई, आपके फैब्रिक में से डाई निकले, आपका कपड़ा फट जाए बीच में से, ना कोई स्टैंडर्ड लेआउट किए, ना सेफ्टी के स्टैंडर्ड, ना कोई परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड, उनमें चलेगा, उसके लिए स्टैंडर्ड ठीक है। जब एक्सपोर्ट करना है तो आप फलां इंस्टीट्यूट से चेक कराओ, आप फलां इंस्टीट्यूट से इसको वेरीफाई कराओ, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ बहुत सारे केसेस में कि जहाँ से हमने माल भेजा वो फॉरेन कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया, उससे इंडिया की बदनामी भी हुई, उससे इंडिया का लॉस भी हुआ। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, आई विल से इवन अप टू लेट 90s, इंडियन गवर्नमेंट डिडंट कंसिडर इंडियन इंडस्ट्री वर्दी of or capable of exporting, and for good reason. I will not blame the government alone. हमारे यहाँ पर भी बिजनेसमैन की कल्चर वो नहीं थी। हम दुनिया को अपनी मार्केट नहीं देखते थे, बल्कि हम डरते थे। हम उनसे डरते थे कि ये लोग आके हमारे को बेच जाएंगे और हमारे देश में आके हमारी लोकल इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। आप 800-1000 साल से गुलाम रहे हैं, बाहर के लोगों ने आके आपके पर राज किया, तो वो उनकी मनोदशा समझना बिल्कुल सही बात थी, उनकी मनोदशा कोई गलत नहीं थी। लेकिन एट द सेम टाइम वी मिस द बिग पिक्चर। जब 90s में हम इकोनॉमी खो रहे थे, तब तक चाइना ऑलरेडी आ गया था। उससे पहले टाइगर इकोनॉमी साउथ ईस्ट की, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब कंट्री वहाँ तक अपने पांव जमा चुके थे तब तक ये। तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया कि हमको उन टाइगर इकोनॉमीज के सामने compete करना पड़ा, क्योंकि उनकी और हमारी competitive strength more or less बराबर सी थी। उनके पास भी लेबर का एडवांटेज था, they were willing to do all the dirty manufacturing work for the world, and we were and then we also always had this political system which was rent seeking, कि भाई आप फैक्ट्री लगानी है, कोई आदमी फैक्ट्री लगाना आ रहा है तो उसको 40 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट को अपना हिस्सा चाहिए उसमें से। सो ऑल इन ऑल, एक तरफ तो हमारे को हमारे अंदर डर था। एज ए बिजनेसमैन वी वर अफ्रेड कि वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव अब्रॉड, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आवर गवर्नमेंट वाज हार्डली, वो हमारे को पीछे से धक्का देने की बजाय हमें पीछे और खींच रही थी। तो उसका नेट इफेक्ट यही हुआ कि हम कुछ इतना बड़ा कुछ कर नहीं सके उस टाइम। मगर उस टाइम कितना मुश्किल था ट्रेड करना, बिकॉज तब तो इंटरनेट तो था नहीं हमारे पास, राइट? नहीं, वो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उसको एक एक्सक्यूज ही समझूंगा, क्योंकि दुनिया के पास ही वो टेक्नोलॉजी थी। मैं जब 1970s में अब्रॉड जाता था तो टेलेक्स से काम करता था, टेलेक्स से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करता था, टेलेक्स से अपने कम्युनिकेशन करता था। Can you even visualize that? I was actually looking at both of you. What is telex? So उसके बाद आगे बढ़े तो फैक्स आने शुरू हो गए। तो मैं सारे दिन यूरोप में, इटली में, स्पेन में, पोर्चुगल में अपने कस्टमर से मिलता था,
और शाम को होटल में बैठ के, मैं होटल भी वही चुनता था जिसके पास इंडिया को फैक्स भेजने की फैसिलिटी हो। हाँ, जो लोग कहते थे हमारे पास इंडिया को भेजने की मशीन नहीं है, तो मैं उन होटलों में ठहरता भी नहीं था। शाम को आके पूरे दिन का स्टडी समरी बनाता था, अपने ऑफिस को बोलता था कि मेरे को ये कोटेशन भेजो, ये कॉन्ट्रैक्ट भेजो। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि भाई जिस टेक्नोलॉजी में हम रह रहे थे, जिस टेक्नोलॉजी पूल में हम रह रहे थे, और कंट्री भी रह रही थी ना। मलेशिया के पास कोई मोबाइल फोन थोड़ी था, इंडोनेशिया के पास इंटरनेट थोड़ी था, थाईलैंड के पास, उनके पास कोई चैट जीटीपी थोड़ी था। तो जिस टेक्नोलॉजी में हम रह रहे हैं उसमें वो रह रहे थे, तो उनको तो किसी ने नहीं रोका। दीज फैक्टर्स ऑफ कोर्स दे आर वेरी दे आर फैसिलिटेटर, but they are not the something which can stop you from trading with the world. Of course. तो उसका, और अगर हम उससे पहले जाएं तो हम, आप ये बताइए, जो लोग इस चीज़ का बहाना बनाते हैं, आप ये बताइए कि मुगल्स के टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं था, चिट्ठी भी यूरोप में जाना होता था तो आपको 40 दिन के पानी के जहाज़ से जाना पड़ता था। तब इंडिया 24% कैसे ट्रेड कर रहा था। मैं 2 महीने पहले इजिप्ट में गया। इजिप्ट में 5000 साल पहले, 2500 साल पहले इंडिया के, साउथ इंडिया के ट्रेडर्स के वहाँ पर स्टोन के ऊपर कार्विंग है उनके नामों की। तो वो कैसे पहुँच गए 2500 साल पहले साउथ इंडिया से इजिप्ट? स्पिरिट थी। व्हाट वाज देयर? स्पिरिट थी एक ट्रेड करने की, एक जज्बा था, एक जुनून था, हमकी दुनिया से ट्रेड करना है। वो जुनून हमारे को कॉलोनाइजेशन की वजह से और पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वो जुनून ख़त्म हो गया। वी वर सैप्ड। हमारी वो जो एनर्जी थी उसको निकाल लिया गया। हमें हमारे जो पंख होते हैं, एक पक्षी अपने पंखों से उड़ता है, वो पंख हमारे छीन लिए गए। आई रिमेम्बर जब एशियड गेम्स हुए थे और 1991 में खुला था थोड़ा सा मनमोहन सिंह जी रिस्ट्रिक्शन, यू कुड सी अ ड्रास्टिक चेंज। टीवी उस टाइम आया था जी, कलर टीवी इंडिया में 1972 में शुरू हुआ था। आधे घंटे के लिए शुरू हुआ था दिन में, और वो भी बॉलीवुड के चित्रहारी आता था उसमें। बट शुरू तो हुआ, एक बिगिनिंग तो की गई ना। जी राइट। तो ये सब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या होने लगा कि दुनिया की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। उसके अच्छी चीज भी हुए, अच्छे नतीजे भी हुए। आज जो तुम कुछ भी चीज अपने अराउंड देखते हो वो 100% एक कंट्री की ओरिजिन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने ये वेल नोन फैक्ट है कि एक मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो कि एप्पल का मोबाइल फ़ोन में भी मेड इन चाइना, बट उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो 30 कंट्रियों के कंपोनेंट होते हैं। चाइना इज ओनली द फाइनल स्टेज ऑफ पुटिंग इट टुगेदर। उसके चिप्स कहीं से आते हैं, उसका कवर कहीं से आता है, उसके बैटरी कहीं से आती है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होके, उसके असेंबली होके, तो ये ग्लोबलाइजेशन होने हुआ। तो उससे क्या हुआ कि हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस शुरू हो गई, खासकर जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हैं। मतलब आप उसको देखेंगे, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर प्रोडक्शन हैपन्स एंड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर कंजम्पशन हैपन। कंजम्पशन, एज यू कैन इमेजिन, रिच कंट्रियों में, डेवलप्ड कंट्रियों में ज़्यादा कंजम्पशन है। प्रोडक्शन ईस्ट एशिया के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन है। चाइना हुआ, ये इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्शन सेंटर हैं। फार्मा का आपने जिक्र किया, तो फार्मा, इंडिया इज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वी शुड बी लेजिटिमेटली प्राउड ऑफ दैट। पर उसका बेस चाइना से आते हैं। हाँ, उसका जो अगर बेस नहीं आया तो आपका प्रोडक्ट नहीं बना। नाउ दैट वी कम बैक टू द इंटरडिपेंडेंसी। बेस नहीं आया आपके उसके जो वो नहीं आया, मॉलिक्यूल्स नहीं आए, उसका जो बोलते हैं, उसका एएमपी बोलते हैं, शायद एएमपी बोलते हैं, या जो भी उसका वर्ड है, वो नहीं आया। तो आप कैसे यहाँ पर उसको वो दवाई नहीं बनोगी, जेनेरिक्स नहीं बनेंगे आपके पास रेयर अर्थ नहीं आए तो आप कैसे बैटरी बनाएंगे? आप तो रुक गए बैटरी बनाने में। सो मच सो चाइना ने पिछले दिनों हमारी 2 टनल बोरिंग मशीन रोक ली। जर्मन कंपनी की मशीन है वो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी। 2.5 साल तक उन्होंने वो मशीनें हमारे देश में नहीं आने दी। तो हालांकि ना कि चाइना वाज नॉट ए सप्लायर, इट वाज द सप्लायर वाज ए जर्मन कंपनी, बट दैट जर्मन कंपनी वाज मेकिंग इट इन चाइना। तो उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी। इंडिया को परेशान करने के लिए, लेट इट बी अनडिप्लोमेटिक बट इट इज़ अ फैक्ट, इंडिया को परेशान करने के लिए उन्होंने उसको, और अपनी पावर एजर्ट करने के लिए उसके ऊपर टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर रोक लगा दी। So that's how countries are connected, interlinked. Yes, and trade is become the biggest weapon.
Yeah. चाहे वो ट्रम्प के हाथ में हो, चाहे वो ईरान का हाथ में हो, वो हरमुज वाली Strait of स्ट्रेट के हाथ में Hormuz. की वजह से, या फिर चाइना के हाथ में रेयर अर्थ हो। मैं भी जी। चाइना से काफ़ी मैंने व्यापार किया। चाइना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से इंपोर्ट नहीं करने देता। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हर एक कंट्री इन सम फॉर्म और अदर डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स लगाते हैं। कुछ और कुछ तो जो मॉनेटरी टैरिफ होते हैं वो तो मनी में होते हैं कि 8% ड्यूटी, 50% ड्यूटी, 40% ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, फलां ड्यूटी, ये ड्यूटी, और इससे ज़्यादा जो कि वेरी हीडियस हैं, जो कि बहुत ही गलत और विच आर डिस्क्रिशनरी एंड विच आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट ओवर। नॉन टैरिफ बैरियर कैसे हैं कि आपने ये कह दिया कि इंडिया के आम में फलां बैक्टीरिया आता है। अब इंडिया का आम पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आप उसको वहाँ रोक लेंगे पोर्ट पे, तो इंडियन एक्सपोर्टर क्या करेगा? उसके पास कोई चारा नहीं है। और ये चीज़ ऐसी, आप कहेंगे मैं लैब में भेज के इसको टेस्ट कराऊंगा, 40 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। 40 दिन में आम थोड़ी बचने वाले हैं। Actually, that leads me to my next question कि जो पॉलिसीज बनाते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जो पॉलिसी बनती है और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है जो एक्चुअल एक्सपोर्टर्स पे आता है या इम्पोर्टर्स पे आता है इंडिया में, विच मेक्स द ट्रेड एक्चुअली डिफिकल्ट। एंड जैसे आपने एक रियल सिनेरियो शेयर करा, बट अभी रिसेंटली इंडिया ने ईयू के साथ 27 जनवरी को मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा, जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम हुए, हमारे ऑल मतलब प्रॉब्ली ऑल द यूरोपियन गुड्स विल बी मच चीपर फॉर अस इंडियंस, हमारे वीज़ा इश्यूज और एवरीथिंग विल गेट मोर रिलैक्स्ड, राइट? तो इसका जो इफेक्ट है नाउ, आई वांट टू अंडरस्टैंड इट नाउ विद अ कल्चरल लेंस, व्हेन यू डील विद यूरोपियंस वर्सेस व्हेन यू डील विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, और बहुत बड़ा हम तो मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट ऑब्वियसली, सो मिडल ईस्ट, दीज थ्री आई सी एज बिगर फोर्सेस ऑफ And China. and China. So how do you think culturally these people are different in terms of dealing? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मांगता है, क्या कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़्यादा मांगता है? So which of the world chooses? Very good question. Now basically, Shikha, you have to see trade is not different from our personal habits. Trade is not different from a culture of a country. अगर हमारी कल्चर ओरल कॉन्ट्रैक्टिंग पे ज़्यादा विश्वास करती है या ओरल कॉन्ट्रैक्टिंग पे चलती है, तो हमारे को एक टेंडेंसी होगी कि हम उसको पेपर वर्क कम से कम रखेंगे, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने की तो हमारे जहन में ख्याल ही नहीं आएगा। हम कभी सोचेंगे नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कोर्ट में ले जाके इसको स्यू करेंगे अगली पार्टी को। तो क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज आर मोर ऑर्गेनाइज्ड in a good sense, I'm saying it in a good sense, they are better organized, they are more formal way of doing business. तो yes, उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग की हर चीज़ को उसके ऊपर रिड्यूस करने की उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसमें 50 कंडीशन होंगी। जब हम चाइना से वो करते हैं, हम उनको फ़ोन पे कहते हैं, हम व्हाट्सअप पे उनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है, हमें भी पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग तो सब ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक इंटरनेशनल ट्रेड में बनता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट उनको ये पता है दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट में भी लीवे रखना पड़ता है एज ए सेलर, उनको भी रखना पड़ता है, हम एज ए बायर हमें भी बहुत सारी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट और वो 5 अगस्त को होती है, तो हम उसको ऑनर करते हैं, बिकॉज वी गो बाय द स्पिरिट ऑफ द एग्रीमेंट, बिकॉज इससे कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज, वन टाइम नहीं है आपका। लेकिन यूरोप में वो मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, चाहे 2 दिन से ख़त्म हुआ, वो हमेशा कहेंगे कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दो हमें। एलसी खत्म हो गई मेरी, तो वो कहेंगे इसको एलसी को रिन्यू करा के लाओ। हम अगर मैं उसको सॉरी एल इज लेटर ऑफ क्रेडिट, एग्जैक्टली, दैट इज ए सिक्योर्ड वे ऑफ पेमेंट, एंड वो भी आपने एलसी का मेरे मुंह से निकला, तो एलसी भी मैं आपको बता दूं कि यूरोप भी एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके साथ मैंने एलसी में काम किया है। मैंने जब माल बेचा है तब भी मैंने बिना एलसी के और कंट्रियों को बेचा, बट जब मैंने यूरोप से खरीदा तब भी वो एलसी मांगते हैं। तो ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ डूइंग। आई मीन अगेन एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द मीन्स, दीज आर नॉट द वन एंड ऑल। नाउ आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र किया। मिडिल ईस्ट में हम उसको, मिडिल ईस्ट के बिजनेस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस। मोस्ट ऑफ द बिजनेस बिटवीन मिडिल ईस्टर्न गवर्नमेंट, यूएई हो, सऊदी हो, कतार हो, ये सब गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारा बिजनेस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, इतना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस मैं इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि या तो गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टी है उस बिजनेस में,
या फिर गवर्नमेंट रन गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज जो ऑयल कंपनी है, ऑयल इंडिया है, ये सब ये है अपना जो गैस का काम करते हैं, गैस इंडिया है, तो ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से, गवर्नमेंट के नियमों से, गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है उस टाइम की गवर्नमेंट की, उससे अलग नहीं डिसाइड कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ दे आर द मीन्स ऑफ गवर्नमेंट, दे आर द आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो बिजनेस है। इसके अलावा एक बिजनेस है, एक सेगमेंट बिजनेस है जहाँ बिग कंपनी इन्वॉल्व है। जैसे मैं उसका एग्जांपल लूँगा, अगर रिलायंस ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया की अरामको से काम करता है, तो वो अरामको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूर है, बट अरामको एंड रिलायंस के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। रिलायंस इज प्योरली ए ड्रिवन शेयर होल्डर ड्रिवन कंपनी। आप हंस रही हैं कुछ उसका और भी तो खैर हम उसको अलग और किसी चीज के लिए छोड़ते हैं, बट in all operational matters, Reliance is a autonomous company. They take decision based on what is in best interest of the shareholder of the company. Mr. Ambani is a very prominent shareholder, but ultimately he has to look after all the shareholder of the company, right, and in self interest, in the good interest. तो उनकी जो टर्म्स होती हैं बिजनेस की, और एक सबसे नीचे पिरामिड के अंदर वो है कि जो एसएमई बिजनेस है, वहाँ के एसएमई बिजनेस, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कतार के हों, चाहे वो सऊदी अरेबिया के हों, चाहे जॉर्डन के हों, चाहे ईरान के भी हों, चाहे वो, और इंडिया की एसएमईज, चाहे वो नासिक का प्याज बेचने वाला हो, या लुधियाना का स्वेटर बेचने वाला हो, या त्रिपुर का वो बेचने वाला हो, टी शर्ट बेचने वाला हो, चाहे वो कहीं का ग्रेनाइट बेचने वाला हो, तो उनका बिजनेस एक डायरेक्ट बिजनेस है। वो बिजनेस में और इंटरनेशनल ट्रेड में इतना ज़्यादा भारी फर्क नहीं है। जवान का फर्क हो सकता है, लैंग्वेज में भी डिफरेंट, उनका स्टाइल बोलने का अलग हो सकता है, बट जो डायनेमिक्स हैं, फॉलोइंग अंडरलाइंग डायनेमिक्स हैं, वो वही होंगे। वो शॉर्ट टर्म पे ही होगा बिजनेस। लाइक ए नासिक का ओनियन सप्लायर, he will not make a contract for 28 delivery because he doesn't know where he will be. Yeah, maybe he will be still in the business or not. Same for the guy in Dubai. He will also be do 2 से 3 महीने की शिपमेंट का होराइजन पे वही काम करेंगे, बिकॉज ना से उससे ज़्यादा उनके अंदर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, ना ही उससे ज़्यादा उनके अंदर विजुअलाइजेशन की बात, और फिर उसके बाद फैक्टर्स भी उनके कंट्रोल में नहीं है। तो वो बिजनेस एक अलग है। एंड इंडिया की जो स्पेशलिटी है, हमारी स्पेशलिटी देखिए, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का बिजनेस है, उसमें हम इतना ज़्यादा हमारे पास, और उसमें मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट देन द कमर्शियल पॉलिसी। सर्टेन कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम नहीं करेगी, सर्टेन कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी, एंड फॉर गुड रीजन, बिकॉज देयर इज ए हिस्ट्री। रशिया के साथ हमारी हिस्ट्री है, 60 साल की हमारी हिस्ट्री है रशिया के साथ, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वेनेजुएला के साथ हमारे पास 40 साल की हिस्ट्री है, और जो दूसरी ईरान के साथ हमारा विच इज़ नाउ कॉल्ड सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, आज हमारे इतने सारे पुराने रिलेशंस हैं, तो वो हम एक सुपर पावर के कहने से उसको हम ध्यान रखेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट पानी में रह के मगर से नहीं आप कभी वैर रख सकते, लेकिन आप मगर के चारों तरफ भी एक दुनिया है, उस दुनिया के साथ तो डील कर सकते हैं ना आप। I think that actually leads me kind of to the last segment of the podcast, which is the war, right? Let's talk about it, guys. यूएस और ईरान के बीच में चल क्या रहा है, ठीक है? मैं आपको एक प्लेन भाषा में जैसे मैं समझती हूँ, मैं वैसे ही आप सबको भी समझाऊंगी। सो एक देयर इज अ वाटर कॉरिडोर कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक 34 किलोमीटर वाइड वाटर कॉरिडोर है बिटवीन ईरान एंड ओमान। द वाटर कॉरिडोर कनेक्ट्स दीज 2 कंट्रीज। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट कि क्यों इतना यूएस इंटरेस्टेड है इसमें इज बिकॉज 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल ट्रेवल्स थ्रू दैट वाटर पाथ। तो मतलब मेजर डोमिनेंस, आप ऐसे समझ लो, वो एक हाईवे है जिस पे सबसे ज़्यादा तेल निकलता है, तो अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी तो पूरी दुनिया का सप्लाई रुकेगा। तो कुछ आप ऐसे समझो उसको। And it's controlled by Iran. It's controlled by Iran and US, we all know, right? They are the global dominant power. अब इससे इंडिया का क्या लेना देना, right? Let us understand. क्या होता है इसमें, let's go a little bit of history. In early 2026,
the US and Israel attacked Iran, right, for the control of this. Now Iran closed its Strait of Hormuz क्योंकि उनके पास उसकी अथॉरिटी थी रोकने की. उससे क्या हुआ, पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई रुक गया, जिससे क्या है हमारी हर चीज पे इम्पैक्ट आता है. ऑयल अब करेंसी के तरह देखा जाता है, तो फॉरेन करेंसी हो गई, आपकी शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ इफेक्ट होता है. ना अगर इंडिया पे इफेक्ट देखा जाए, अब मैं एक नॉर्मल अपने घर में रह रही हूँ, मैं ना ट्रेड में हूँ, मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे लाइफ में कैसे आ सकता है उसका असर? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑयल सारा दुनिया का लॉजिस्टिक्स चलाता है, शिपिंग चलाता है. तो अब हमारी कहाँ कहाँ ऑयल और गैस यूज़ होता है. खाने में हमारा बेसिक खाना महंगा हो सकता है, हमारे गैस के बिल महंगे हो सकते हैं, और अल्टीमेटली गाइस लाइक अ जेंजी इफेक्ट, हमारा स्विगी और जोमेटो का फूड डिलीवरी बिल भी महंगा हो सकता है उससे, विच इज़ क्रेजी. एंड एक छोटा सप्लायर जिसके लिए उसकी स्मॉल बिजनेस है, उसके लिए उसकी लॉजिस्टिक्स, अगर कहीं पीछे से माल आना है, फॉर अ ट्रेडर आप अंडरस्टैंड करेंगे, उनका कुछ पीछे से माल आना है और कहीं पे ग्लोबली ऑयल रोक दिया, तो शिप में अगर ऑयल ही नहीं होगा वो चलेगा कैसे? तो हर चीज़ ट्रिकल डाउन इफेक्ट है गाइस. इसका शिपिंग डिले होगा, टाइम इज ऑल्सो कॉस्ट इन ट्रेडिंग, क्योंकि टाइम अगर गया तो आपकी कॉस्ट सारी, कंटेनर अटक के रह जाएगा जैसे सर समझा रहे थे, एंड हमारी शिपिंग कॉस्ट ऊपर हो जाएगी. बट इससे क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा प्यारा अपना स्टांस लिया, जैसे आप कह रहे थे कि इंडिया का न्यूट्रल इफेक्ट है हमारा, स्टेबलाइज्ड सिविलाइजेशन appears to be neutral. We have to appear to be neutral. Yes, that is what exactly India Till the did. elections get over. No comments. But Indian government ने बहुत smartly, this is a very good move, that they have set up a 24/7 control room and tracked 28 Indian vessels. अब क्योंकि ईरान और इंडिया का रिलेशन न्यूट्रल है, क्योंकि इंडिया ने ना यूएस की साइड ली ना ईरान की, तो ईरान इज ओके विद दैट, दे आर ओके, बोथ द कंट्रीज आर ओके विद अ न्यूट्रल स्टांस. इसलिए गाइस हम पे इफेक्ट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इंडियन वेसल्स के लिए उन्होंने वो रास्ता, वो वाटर कॉरिडोर खोल दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो इम्पैक्ट जो 10x आ सकता था पहले, अब वो शायद 2x रह गया, क्योंकि हमारे वेसल्स खुल गए. But uske all credit to our government or the policies and the how we have structured it, that we have kept a very neutral stance in the world politics, which actually leads me to my next question कि ये जो geopolitics, जैसे starting में मोना जी भी बोल रही थी कि geopolitics को अगर मैं तोड़ूं, it's geography and politics. तो हर कंट्री का पॉलिटिक्स होता है इंटरनल, बट व्हेन दे मीट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर कंट्रीज, तो वो पॉलिटिक्स को जो होती है उसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, व्हेन यू आर डीलिंग विद द अदर कंट्रीज. नाउ इसका असर अब इंडिया पे हमने देखा, मैं बहुत लेमैन भाषा में समझा पाई, बट आपके एज अ ट्रेडर लेंस में मैं अगर देखना चाहूँ एक इंटरनेशनल लेंस से, तो क्या इफेक्ट आया इस वॉर का हम पे? नहीं, इसका बहुत इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट बाहर आया, और अभी इसका इफेक्ट अभी फॉर मैनी मंथ्स वी विल कंटिन्यू टू फेस दैट. ऐसा नहीं है कि हार्मोज खुल जाएगा और अगले दिन से बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले कुछ नहीं होगी. अभी जो उसका जो फॉल बैक हो गया, जनरली ऐसा बोला जाता है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एक बिकॉज ऑयल टैंकर बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं, तो इतने सारे ऑयल टैंकर जो कि हार्मोज से पार हो चुके थे, वो आजकल इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं. यूरोप में तो 60 दिन का ये रास्ता हम समझते हैं, तो यानी कि अभी तो उनको इफेक्ट आना शुरू ही नहीं हुआ. ये तो प्री वार जो ऑलरेडी कार्गो पानी पे था, वो उनको मिल रहा है, तो इसलिए फुल इम्पैक्ट आया नहीं इसका. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, मिटिगेट किया, उसको ट्रेड भाषा में मिटिगेशन बोलते हैं, इंश्योरेंस का शब्द है एक्चुअली तो ये. तो मिटिगेशन बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, साइलेंट डिप्लोमेसी रखी, बहुत ज़्यादा ना उसको इजराइल को क्रिटिसाइज़ किया, ना ईरान को क्रिटिसाइज़ किया, और बड़े भाई को तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता. हाँ जी. तो और फिर इनसे हमारे अबाइडिंग रिलेशंस हैं. देखिए क्या है, हम बड़े यूनिक पोजीशन में हैं. हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है. हम वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू स्टे अवे फ्रॉम आवर पाथ ऑफ ग्रोथ. हम लड़ाई करके या एक कैंप में बैठ जाए, उसका हो सकता है कोई मोमेंटरी फ़ायदा हो जाए हमारे को, लेकिन दूसरी साइड हमारा दुश्मन बन जाएगा, और उससे हमारे को उसको प्राप्त हो सकता था वो नहीं होगा. ईरान का इंडिया, आपने ईरान को क्रेडिट दिया कि इंडिया गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से मैनेज किया, बट ये भी मत भूलिए आप कि ईरान के हम सेकंड बिगेस्ट बायर हैं ऑयल के. आफ्टर चाइना वी आर नंबर 2 बायर. एंड ईरान को भी पता है कि झगड़ा 2026 का है, और उसका इम्पैक्ट भी 2030 में. हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, हमने गवर्नमेंट ने ऑप्शन एक्सरसाइज किए हैं. वो वेनेजुएला से भी बात की है, रशिया का ऑयल
महंगे, बल्कि रशिया ने उसका भाव बढ़ा दिया ईरान के अंदर वो देखते हुए, which is a normal trade Typical practice. business. It is typical business. We are not Demand cut off. supply, We are not dealing with saints. We are dealing with businessmen. We are all neither saints ourselves. हम भी तो जब वो परेशानी में आते हैं, हमने भी तो $8 पर बैरल का रशिया से कम करवा लिया था भाव. तो वो कोई वो it is a part It's of the normal, game. It is not something. Even it will not be called arm twisting. It is just a Business tactic. business norm. It is Yeah. almost a norm. Right. और फिर वो पैसा भारत सरकार के पास थोड़ी रहता है. वो तो ऑयल सस्ता हुआ तो वो कंज्यूमर के पास जाता है, उसका पास डाउन इफेक्ट इन वन फॉर्म और अदर वो कंज्यूमर के पास जाते ही जाता है. वो कोई उसको नहीं रोक सकता, बिकॉज द साइज ऑफ द कार्गो एंड द साइज ऑफ द ट्रेड इज सो बिग. आप उसको अपने 1-2 महीने तक तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बट अगर इंटरनेशनल भाव बढ़ते गए, इट्स ए यूनिवर्सल नॉलेज. आज एक आप चाय बेचने वाले ठेले के पास भी चले जाएं, उसको सोने का भाव, डॉलर का भाव, चांदी का भाव और ऑयल का भाव, ये चारों चीज़ें उसको पूरा पता होगा. उसको पता है कि आज ब्रेंट का भाव $100 पर बैरल से ऊपर चला गया या नीचे चला गया, सोना इतने का चला गया, डॉलर ₹53 का हो गया. वो थोड़ी पान बेचने वाला थोड़ी डॉलर में डील कर रहा है, ना उसकी पेमेंट डॉलर में आ रही, ना उसको वो अपने सप्लायर को डॉलर में पे कर रहा. बट ये एक कमर्शियल एजुकेशन का हिस्सा है, क्योंकि सारे दिन स्क्रीन पे आप वो खोलो तो वो यही चलता रहता है, टिकर ही चलते रहते हैं सारे दिन, और वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपको पता चल जाएगा. तो इसमें क्या है कि हमारे पर बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने अभी सो फार मैनेज किया, एंड होपफुली अब जैसे ये सीज फायर की बातें चल रही हैं और ये सीज फायर होगा, पूरा नहीं होगा तो आधा होगा, तो ट्रेड तो चलता ही रहेगा. तो इसलिए क्या है कि ये वी विल वन डे बी ओवर दिस. बट इससे मेरे को बहुत सारे हमको प्रिपेयर करना चाहिए फ्यूचर में. मैं ये नहीं कहूँगा कि हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे इसके लिए, बट हमारी तैयारी है हमें एक्सपीडाइट करनी चाहिए. जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि हमारी डिफेंस के अंदर बहुत सारे वीक एरियाज़ हैं, हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है फॉरेन आर्म सप्लायर्स पे. तो उन्होंने आत्मनिर्भरता में, और मुझे आई एम ए विटनेस टू इट, गवर्नमेंट ने जेन्युइनली इंडियन प्रमोटर्स को, इंडियन सप्लायर्स को डिफेंस इंडस्ट्री में जेन्युइनली, ये पहले भी होता था लेकिन पहले सिर्फ नाम के लिए होता था, कागजों पे होता था, गवर्नमेंट कहती थी, लेकिन खरीदते थे वो माल सिर्फ फॉरेन सप्लायर से. अब गवर्नमेंट जेन्युइनली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जेन्युइनली ट्राई कर रही है कि इंडिजीनियस हमारे पास इंडिजिनस सप्लायर पैदा हों. तो इसीलिए अब जैसे ऑयल एंड एनर्जी पे हमारी जो डिपेंडेंस है, अभी मैं पिछले दिनों अग्रवाल जी जो इसके वेदांता के मालिक हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये फिकी के किसी इवेंट में कही कि हमको इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम और डिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं है. अभी हमारी ऑलमोस्ट एनर्जी के लिए 80 to 90% डिपेंडेंसी है. सॉरी, मैंने कहा था कि मैं कोई स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं करूँगा, बट ये इतना प्रोनाउंस्ड नंबर है 80 to 90%. इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी राइट गवर्नमेंट हैंड होल्ड करे, गवर्नमेंट थोड़ा सा लिबरल हो, इंडियन एक्सप्लोरर्स एंड माइनर्स के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट का फैक्टर बढ़ाए. मुझे मालूम है कि बाद में ये पिछले सालों में इसको मिसयूज़ किया है सम कंपनीज ने, लेकिन अब ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा फॉरगिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, मोर कंपनियों को प्रमोट करे. देश के अंदर बहुत रिसोर्सेज हैं, सोना ही हमारे अंदर इतना है, हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं सोने के, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है हमें सोना इंपोर्ट करने के लिए, हमारे पास हैं. चाइना ने ये प्रूव किया है ये चीज़ कि नथिंग इज़ फॉर परमानेंस. आज आप उसके अंदर नंबर 1 हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 साल तक भी हमेशा उसमें नंबर 1 ही रहोगे. आज हम इंपोर्टर हैं तो हम नेक्स्ट एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं. और हमने इंडिया का खुद, मेरे पास बहुत सारे सेक्टर हैं जिसका मेरे पास एग्जांपल है. वैक्सीन, पहले हम सारी इंडिया के अंदर वैक्सीन सारी वो इंपोर्ट करते थे, एंड दैट्स वाई maybe 2% of our population could afford vaccination because it was so expensive. We could not, middle class and lower income group could never afford vaccinating the children. And of course, अगर वो खुद अपनी इनकम से इम्पोर्ट नहीं वो अफोर्ड कर सकते, तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के पास इतना फंडिंग नहीं है कि वो आम बच्चों को वो वैक्सीन करा के दें. तो वैक्सीन में हमने ये रिवर्स किया है, नेट इम्पोर्टर से नेट एक्सपोर्टर. अब हमारा इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है
मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट दुनिया की 60 से 70% वैक्सीन हमारे यहाँ बनती हैं, इंडिया में बनती हैं, और इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती हैं। स्पेशली जो- कोविड वैक्सीन, कोविड है, पोलियो है, मलेरिया की भी बात चल रही है अब तो, स्मॉल पॉक्स की है, चिकन पॉक्स की है, ये सब वैक्सीन हमारे यहाँ पर, और ये रूटीन बन रही हैं। इसके लिए हमें कोई हमको जाके किसी को प्रूव नहीं करना। और आगे के अंदर भी जो नई वैक्सीन बनेंगी वो भी हमारे देश से ही निकलेंगी। जैसे हमारे यहाँ से ही वन ऑफ आवर इंडियन कंपनी, दे विल बी मेकिंग दिस एक्शन, one of our Indian company will be discovering new molecules, one of our Indian company will be coming with new drugs. आप देख रहे हैं ना इसमें सेमीग्लूटाइड में क्या हो रहा है, कितनी जल्दी जीएलपी में कितना ज्यादा इंडिया, कितनी फास्ट इंडिया मूव किया है, इंडियन कंपनियों ने कितनी, दे वर वेटिंग फॉर 22 मार्च। जैसे ही 22 मार्च आया उन्होंने खोल, एंड दिस इज हाउ द ट्रेड इज डन। आई मीन दैट्स ए finest example of how you Real prepare time. for an opportunity and make use of that opportunity. अगर आप उसके 23 मार्च का शुरू करने के बाद आप अपने ड्रग्स बनानी शुरू करते तो 2 साल लग जाते, 2 साल में कुछ और नई टेक्नोलॉजी आ जाती। It is not forever. This medicine is this wonder medicine is also not forever. Every success in the world comes with his own seeds of destruction. जो आज सक्सेसफुल है वो एक दिन फेल जरूर होगा, ये प्रकृति का नियम है। ये नियम है, हमें ये नियम मान के चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो आज हम सक्सेसफुल नहीं है, नाइदर द फेलियर इज फॉर परमानेंस, इट इज नॉट फॉर परमानेंट फेलियर। आप करो कोशिश, यू विल ओवरकम। Okay, perfect. Do you have any closing question? yes, so question to nahi hai, just a Remark. Yeah, that I hope some sense prevails in the international political situation. Yeah. Yeah, and we get to, because you as you understood from the conversation today, everything is entwined, like सब कुछ interconnected है हमारी ज़िंदगी में, बाहर जो हो रहा है वो भी हमारी ज़िंदगी को impact करेगा। तो I hope some sense prevails and we come back to some normal times. उसके बाद भी बहुत टाइम लगेगा नॉर्मल पेट्रोल नॉर्मल होने में और सब कुछ हमारी ज़िंदगी नॉर्मलाइज होने में, बट शुरुआत तो हो। Absolutely, absolutely. I mean, today's conversation was an eye-opener, and it was more like a session or knowledge session for me as well. Yeah. We learned a lot. So thank you so much for No, I coming didn't on came the to teach you. podcast. I came to talk to you. Yeah, but we learned Yeah. through this conversation, and I am sure, like, how many opportunities Sir spoke about. I mean, Gen Zs are making those things. I see such good AI startups in the space. Like, who had imagined like Indian startups will go in space? And you know, when that's the kind of thinking we keep, and I'm sure there are so many industries in trade as well where we'll open up, and I think we'll change the future of India, and these numbers will be better. And but any which ways, we had a really great conversation, and hope you stick till the end, heard the whole thing, and tell us in the comment what was some interesting fact that you got out of this conversation which you didn't know ever. That will be our addition to your life. through What this inspires podcast. you from this, right? Absolutely. Yeah. Thank you so much for coming Thank on you. the podcast, and we'll get back to you.